Hello students, I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, lines and angles. Inside the chapter, pairs of angles, parallel lines and transversal. तो इन topics के बारे में हम discuss करेंगे इस chapter के अंदर. We have already learned some geometrical terms, namely a line, a ray, a line segment, an angle, etc. In this chapter, we will extend our knowledge by learning some special pairs of lines and angles. But before proceeding further, let's recall what we have learned. हमने कुछ geometrical terms के बारे में पढ़ा हुआ है अपने previous class में, like ray, line, line segment. Okay. So इस chapter में हम अपनी जो knowledge को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, but उससे पहले हम recall कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था. Okay. सबसे पहले है line. An edge of a box gives us an idea of a line. If we imagine the edge to be extended on both sides indefinitely, a line cannot be drawn on a paper. Only a portion of it can be drawn. A line has indefinite length because it has no end point. We can name a line in two ways. जो edge होता है box का, वो हमें एक line का idea देता है. Okay? अगर हम imagine करें कि हम दोनों side से उसको बढ़ा दें. ओके सो जो लाइन है आप उसे पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते, सिर्फ उसका एक पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके लाइन की होती है इनडेफिनेट लेंथ, कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. ओके तो हम लाइन दो तरीके से उसको नेम कर सकते हैं. सबसे पहले बाय अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फाबेट दैट इज एल, एम और पी. We name the given lines as line L, line M और line P. तो लाइन को आप कोई भी नेम दे सकते हैं स्मॉल लेटर से, लाइक जैसे LMP इसको नाम दिया गया है, दोनों साइड्स एरोज होते हैं. ओके नंबर 2, बाय मार्किंग 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन दैट इज A and B, P and Q और X and Y, we name the given lines as line AB, line PQ और line XY. ओके पहला तरीका था क्या था कि आपने एक सिंगल लेटर दे दिया. दूसरा तरीका क्या है कि आप उसमें दो पॉइंट्स को मार्क करेंगे, लाइक ए बी पी क्यू एक्स वाई, और इस तरह से उसकी नेमिंग करेंगे. ओके एंड लाइन को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से. ओके लाइक लाइन ए बी, पी क्यू हमने लिखा है लाइन पी क्यू. ओके तो ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है लाइन को. ओके नाउ नंबर 2 इज रे. A ray means the part of a line that extends indefinitely in one direction from a point. The point is called the initial or end point of the ray. An unlimited number of rays can be drawn with a given initial point. Thus, a ray has only one end point and it has indefinite length. As shown in the figure, there is exactly one ray which has O as its initial point and passes through a given point A. This ray is denoted by ray OA. Thus, it can be extended indefinitely in the direction from O to A. अब ray क्या होता है देखिए, ray actually आपका part है line का. ओके इसका इनिशियल पॉइंट होता है बट इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. मीन्स आपको इनडेफिनेटली इस डायरेक्शन में आप इसे बढ़ा सकते हैं. जैसे कि आपको दिया गया, देखिए दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ओ इज द इनिशियल पॉइंट, बट ए जो है आपका, आप ए को इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. और इसे कैसे हम डिनोट करते हैं, ओ ए, एंड दिस इज द सिंबल फॉर रे. ओके सो एक डायरेक्शन में इसका मतलब इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. The distance between any two points is called a line segment. It has definite length and has two end points. अब line segment आपका line से अलग होता है. Actually line segment क्या होता है, दो points के बीच का distance. Okay? इसकी definite length होती है और इसके दो end points होते हैं. Right? These two are the end points. अब क्योंकि end points होते हैं तो आप इसे नहीं बढ़ा सकते indefinitely. Okay? और इसे हम कैसे denote करेंगे, AB line segment इस तरह से. Okay, see there are no arrows, right? Next is angle. A figure formed by two rays having same initial point is called an angle. The two rays are called its arms or sides or legs. As shown in the adjacent figure, OA and OB are the arms of the angle. An angle is denoted by this symbol. Okay, so the given angle is written as angle AOB or angle BOA or simple as angle O. तो देखिए एंगल आपका कुछ इस तरह से बनता है, राइट, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो दो रेज होती हैं उनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है. ओके फॉर एग्जांपल दिस इज द रे, इसका इनिशियल पॉइंट है, दूसरी रे. अब दोनों ही रे का क्या है, सेम इनिशियल पॉइंट है, ओ ए
and B. So these are the two rays, OA and OB. And ये जो है आपका, ये जो वर्टेक्स यहाँ पे बन रहा है, ये आपका होता है एंगल, और एंगल को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से. हम इसे लिख सकते हैं एंगल O, या फिर एंगल AOB, या फिर एंगल BOA. मीन्स ये जो वर्टेक्स है ये आपका बीच में आना चाहिए. ओके, चलिए. नाउ पेयर्स ऑफ एंगल्स. सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. Two angles are said to be complementary angles if the sum of their measures is 90 degree. Each angle of such pair is called a complement of the other. दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कब कहते हैं? जब उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है. ओके, और जो हर एंगल है ऐसे पैर का, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर. जैसे कि देखिए 35 डिग्री का एंगल है, 55 डिग्री का, दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 90 डिग्री एंगल. यानी कि दोनों ही जो एंगल्स हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. ओके, सो टू एंगल्स विथ मेजर्स 35 डिग्री एंड 55 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स because the sum of their measures is 90 degree. Therefore 35 degree and 55 degree are the complement of each other. Next is supplementary angles. Two angles are said to be supplementary angles if the sum of their measures is 180 degree. Each angle of such pair is called a supplement of the other. दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कब कहते हैं? जब इनके दोनों एंगल्स को प्लस करके आता है 180. ओके, और हर एंगल को ऐसे पेयर का कहा जाता है सप्लीमेंट ऑफ द अदर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 64 डिग्री एंड 116 डिग्री है, राइट? दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. ओके, सो टू एंगल्स विद मेजर्स 64 डिग्री एंड 116 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री. देयरफॉर 64 डिग्री एंड 116 डिग्री आर द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. ए, फॉर ईच एंगल इन सेट ए फाइंड इट्स सप्लीमेंट इन सेट बी and B part which angles in set A and B are complementary angles. Okay, so set A आपको दिया गया है और आपके इनके लिए आपका क्या फाइंड आउट करना है? आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है सेट B में. ओके, सो 15 डिग्री है आपके पास. ओके, सप्लीमेंट 15 डिग्री सबसे पहले हमने लिया. ओके, सो 180 में से, क्योंकि सप्लीमेंट हम ढूंढ रहे हैं, 180 में से माइनस कर देंगे तो देखिए कितना आएगा आपका 165 डिग्री. सो इसका सप्लीमेंट क्या आ गया? 165 डिग्री. सो बाकी सिमिलरली आपने ऐसी 180 में से माइनस करने हैं, वो सारे ही सेट्स आपको मिलेंगे सेट बी में, सारे ही आपके सप्लीमेंट. ओके, एंड बी पार्ट्स व्हिच एंगल्स इन सेट इन बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब हमें सेट ए और सेट बी में से बताना है कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है. मीन जिनको प्लस करके कितना आता है आपका 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट ए की बात करें 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, क्योंकि दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आपका आएगा 90 डिग्री. सो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इसी तरह से आपने आप जो बी सेट है इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स बाकी के जो अपने एग्जाम्पल्स हैं इसी तरह से करने हैं. ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 6A की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट यानी जब दो एंगल्स का सम, दोनों एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है. 90 में से आप माइनस कर दीजिए 12. देखिए माइनस करेंगे 10 माइनस 2 इज 8 एंड 8 माइनस 1 इज 7. तो 78 डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट है. ओके, 12 डिग्री एंगल का. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है. सप्लीमेंट में आप क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे. ओके, चलिए अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका पैरेलल लाइंस. Two lines or line segments in a plane which do not intersect each other and the perpendicular distance between them remains constant are called parallel lines. देखिए दो लाइंस या लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, हमेशा देखिए आपकी जो पैरेलल लाइंस होती है एकदम स्ट्रेट होती हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है और ये कहीं पे भी नहीं मिलती हैं. ओके, जैसे आपको ये दी गई है L एंड M, ये दो जो लाइंस हैं ये आपकी क्या है? ये पैरेलल है. L लाइन एंड दिस इज M. या तो लाइन या लाइन सेगमेंट, और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा आपका क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, राइट? सो एज शोन हियर L इज पैरेलल टू लाइन M. ओके, सो इसको कैसे लिखते हैं? द सिंबल ऑफ पैरेलल इज दिस. सो हम लिखेंगे L इज पैरेलल टू, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल, L इज पैरेलल टू M. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल. A line which intersects two or more given lines at different points in a given plane is called a transversal.
एक लाइन जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है किसी गिवन प्लेन में, उसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आप ट्रांसवर्सल देख सकते हैं, हियर इन द फिगर ए लाइन एन, दिस इज ट्रांसवर्सल टू लाइंस एल एंड एम, ठीक है, क्योंकि एल एम को ये लाइन काट रही है एन, तो ये ट्रांसवर्सल है because it intersects these lines at P and Q. देखिए P and Q points पे ये काट रही है, but in the figure B line N is not a transversal because it intersects the two lines at only one point O. अब लेकिन अगर हम B पार्ट की बात करें, यहाँ पे जो N है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रही है, वो है O, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ओके, angles formed by a transversal with two parallel lines. अब देखिए एंगल्स जो ट्रांसवर्सल आपका फॉर्म करता है दो पैरेलल लाइंस के साथ। लेट एल एंड एम बी टू पैरेलल लाइंस एंड एन बी अ ट्रांसवर्सल। एल एन एंड एम ये पैरेलल लाइंस है और आपकी एन जो है वो ट्रांसवर्सल है। इंटरसेक्टिंग दीज लाइंस एट ए एंड बी, देन वी हैव कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सी आपके पास ये लाइन है एल और ये लाइन है आपके पास एम, इससे एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है एन। ओके, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए, ये एंगल 1 2 3 4, ओके, इसी तरह से आपके पास है 5 6 7 8। ओके, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके 1 and 5, ओके, 2 and 6, फिर है आपके पास 3 and 7 एंड 4 and 8। ये सारे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये तो इक्वल होंगे। आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, ठीक है, आपका एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा। रीजन, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से एंगल 2 आपके एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 आपके एंगल 7 के बराबर होगा, बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंगल 3 and 5, अगर आप 3 and 5 को ध्यान से देखें, 3 and 5, ओके, तो ये आपके हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 and 6 की बात करें, 4 and 6, ओके, एंड इसके अलावा ये आपके पेयर्स हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, तो इसीलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल होते हैं। जैसे कि आपका एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 आपका एंगल 6 के इक्वल होगा। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जैसे कि 2 and 8, ओके, सी 2 and 8 ये भी ऑल्टरनेट एंगल है बट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से 1 and 7, ओके, सो एंगल 2 and 8 इक्वल होंगे आपके, और एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा। सो द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट इज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, लाइक एंगल 3 and 6, 3 and 6, राइट। इसी तरह से एंगल 4 and 5, 4 and 5 ये आपके पेयर्स हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर, या सिंपली आप इसे को इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं, और इनका सम हमेशा होता है 180 डिग्री। सो एंगल 3 और एंगल आपका जो 6 है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी तरह से आपका एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी क्या होगा, 180 डिग्री, ओके। सो द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, test for parallel lines. To check whether the lines are parallel or not, following results have to be tested. आपको ये चेक करना है कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, तो आपको कुछ रिजल्ट्स चेक करने होंगे। सबसे पहले, when a transversal cuts two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then the lines are parallel. जब ट्रांसवर्सल जो है दो लाइंस को कट करती है, तो ऐसे जो पेयर्स होते हैं corresponding angles के वो इक्वल होते हैं, तो दैट मीन्स लाइंस आपकी पैरेलल है। 2. When a transversal cut two lines such that pairs of alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है, ओके, और जो पेयर्स होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के वो इक्वल होते हैं, तो मीन्स आपकी जो लाइंस है वो पैरेलल है। नंबर 3, when a transversal cuts two lines such that pairs of co-interior angles on the same side of the transversal are supplementary, then the lines are parallel.
जब ट्रांसवर्सल जो है लाइंस को कट करती हैं तो जो पेयर्स होते हैं को इंटीरियर एंगल्स के सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180 हो, तब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं. ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं. इन द गिवन फिगर L is parallel to M and P is a transversal such that angle 1 is equals to 145 degree. ओके, अब देखिए यहाँ पे L पैरेलल है M के, P आपकी ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 आपको दिया गया और आपको फाइंड करने हैं बाकी के जितने भी एंगल्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8. ओके, सो कैसे फाइंड हम करेंगे? देखिए सबसे पहले एंगल 1 आपको गिवन है 145 डिग्री. ओके, अब एंगल 1 के इक्वल आपका होगा एंगल जो 7 है इसके इक्वल होगा. वाई? रीजन इज गिवन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ओके, अब 145 डिग्री है तो 5 जो एंगल 5 है वो भी 145 डिग्री होगा. रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल के हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ से आपका 5 भी आ जाता है 145 डिग्री. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, दोनों 180 डिग्री बनाएंगे. एंगल 1 आपके पास है, 2 कैसे निकलेगा? अब 180 में से 145 को माइनस करेंगे तो 2 आपके पास आ गया 35 डिग्री. अब आपके पास एंगल 2 आ गया है तो आप एंगल 8 जो एंगल 2 के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है. इसी तरह से 2 एंड आपका जो 6 है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो 6 भी आपका 35 हो गया. राइट, इसके बाद देखिए एंगल 6 और एंगल 3 जो है आपके क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, दोनों का सम होगा 180 डिग्री. तो 3 कैसे निकलेगा? 180 डिग्री में से 35 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ से एंगल 3 आ जाएगा हाउ मच? 145 डिग्री. तो इस तरह से हमें सिर्फ एक एंगल पता था, राइट, लेकिन क्योंकि हमें रीजन पता है कौन से एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं तो उससे हमने सारे ही फाइंड आउट कर लिए. राइट, बाकी के एग्जाम्पल्स बच्चों आप इसी तरह से करेंगे. अब हम एक्सरसाइज 6B की तरफ चलते हैं. In which of the following figures the line P is a transversal to the other given lines? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी फिगर में लाइन P जो है ट्रांसवर्सल है other given lines के. ओके, so as you can see here A, B and C, तो क्लियरली यहाँ पे आपका जो P है, A पार्ट जो है यहाँ पे P आपका जो है वो एक ट्रांसवर्सल है. ओके, सो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.